A very good afternoon, sorry, a very good evening to all. As we start, I would like to thank the advisor, the secretary, the assistant secretary, and the assistant joint secretaries of the Clinical Society SWC 2024-25 for taking an initiative for organizing a competition like this. Truly, it requires too much efforts for arranging a competition like this. So let's begin with the topic. The topic for the day is drug picture on Brownia alba. So the drug is a hot patient. Brownia alba is a hot patient and it is generally a right-sided remedy. Means it generally affects the right side of the body. The common name of the drug is white bryony and the family to which it belongs is Cucurbitaceae. The mechanism of the drug is SORA and it was proved by Dr. Hahnemann, the father of homeopathy. The constitution of the drug, the patient would be dark haired, dark complexion, firm muscular fiber and is useful for gouty and rheumatic diathesis person. The Brownia patients are irritable, inclined to be vehement and angry. Means the patient would be very short-tempered. Like as we can see in the picture as well, the patient is getting angry on the nurse. And it is a very common character of the drug. The patient would be very short-tempered and would get angry very easily. Mental generals. Ailments from chagrin, mortification, anger. Chagrin is the form of unexpressed anger or suppressed anger. Mortification is a form of shame. Means in the case where the patient is unable to express the shame, the child will not be like to be carried or to be raised, and will want things that cannot be had. For example, the child will ask for a sun or moon to bring, but how can we bring those things? मतलब वो बच्चा बोलेगा कि मेरे को सूरज और चंदा ला के दो, तो वो नहीं ला सकते, और उसके जगह आप उसको जो भी चीज़ देंगे वो उसको वंस मतलब एक ही बार में उसको रिजेक्ट कर देगा, वो लेगा ही नहीं. और ऐसे ही वो चाइल्ड भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, उसको आप हाथ लगाओगे कुछ भी बोलोगे वो एक ही बार में वो शॉर्ट टेम्पर्ड वो पूरा गुस्सा हो जाएगा, भाग जाएगा वहाँ से. कमिंग टू द फिजिकल जनरल्स, complaints arise from warm weather when warm weather sets in after cold days, from cold drinks or ice in hot weather. Complaints शुरू होता है generally in the warm weather जब set in मतलब start होता है कोल्ड डेज के बाद, मतलब इन जनरली मार्च और अप्रैल मंथ के महीने में ये देखने को मिलेगा. और पेन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस ड्रग का. स्टिचिंग टियरिंग वॉर्स एट नाइट, मतलब पेन ऐसे लगेगा जैसे कोई आपको स्टिच मार रहा है स्किन में, ऐसे लगेगा पेन जैसे आपको मतलब वो पूरा एरिया में स्टिच है, और वो रात को ज़्यादा वर्स हो जाएगा, संभालने नहीं होगा, अनबियरेबल पेन. Then there would be excessive dryness of mucous membrane of entire body. The cough would be dry, hard, racking with scanty expectorations. कफ पूरा ड्राई होगा, हार्ड होगा, जस्ट बिकॉज म्यूकस मेम्ब्रेन ही पूरा ड्राई है. एंटायर म्यूकस मेम्ब्रेन इज कम्प्लीटली ड्राई, और एक्सपेक्टोरेशन भी पूरा स्कैंटी और एकदम नील होगा, बिल्कुल कुछ एक्सपेक्टोरेट कुछ नहीं होगा. एंड द पेशेंट वुड बी थर्स्टी फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल्स. जस्ट बिकॉज म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा ड्राई है बॉडी में, तो इसीलिए पूरा वो थर्स्टी होगा, एक्सेसिवली थर्स्टी फॉर कोल्ड वाटर. कमिंग टू द headache will begin when in stooping position, as if the brain would burst through the forehead from ironing and coughing. Headache due to cold, coryza and constipation. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हेडेक वो स्टार्ट होगा सुबह को एंड वो चलते रहेगा अंटिल इवनिंग.
Next, coming to the GI system, the patient cannot sit up from nausea and faintness. मतलब पेशेंट को इतना वीकनेस होगा कि वो अपने बेड से उठ के बैठ भी नहीं पाएगा, वो बस ऐसे सोए रहेगा, उसको इतना नॉजिया और फेंटनेस रहेगा. देयर इज ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द होल एलिमेंट्री कैनाल. उसका पेशेंट का एलिमेंट्री कैनाल पूरा कंप्लीटली ड्राई होगा और उसी वजह से वो पूरा थर्स्टी रहेगा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर के लिए. मतलब उसको जितना भी मतलब वो बहुत ही थर्स्टी रहेगा लार्ज क्वांटिटीज के लिए, लार्ज क्वांटिटीज वाटर लेगा लंबा लंबा इंटरवल्स में. कमिंग टू द कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन इज इनएक्टिव नो इंक्लिनेशन. मतलब उसको अर्ज ही नहीं होगा, नो अर्ज फॉर स्टूल. एंड इफ एट ऑल कुछ भी स्टूल आता है तो स्टूल वुड बी लार्ज, ड्राई, हार्ड, डार्क एंड ड्राई एज इफ बर्न्ड. मतलब वो ऐश की तरह रहेगा. मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन ही पूरा ड्राई है, वो एलिमेंटरी कैनाल ही पूरा ड्राई है, तो जो भी स्टूल निकलेगा वो पूरा कंप्लीटली ड्राई होगा और पूरा ब्लैक कलर, डार्क कलर का रहेगा. Diarrhea would be during a spell of hot weather, acrid with soreness of anus like dirty water of undigested food. Diarrhea would be in the spell of hot weather. मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हॉट वेदर रहेगा, उसी टाइम उसका डायरिया होगा. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब मतलब जो इसका सफ़रर होगा, जो इस पेशेंट होगा, वो जब मतलब कांस्टेंट बैठा रहेगा तो उसको कॉन्स्टिपेटेड फील लगेगा. लेकिन वो जब उठ के एक जगह से दूसरी जगह चलना फिरना स्टार्ट करेगा, उसको डायरिया जैसे फील होगा. ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस ड्रग का. नेक्स्ट, कमिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंसेस आर टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज. मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा मतलब उसका ऑर्डर में ही नहीं होगा, वो पूरा मतलब कुछ भी हो सकता, टू अर्ली हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक डेट ही नहीं है उसका मेंसेस का. एंड देयर वुड बी इंटरमेंस्ट्रुअल पेन विद ग्रेट एब्डोमिनल सोरनेस, विकारियस मेंस्ट्रुएशन एंड नोज ब्लीड व्हेन मेंसेस शुड अपीयर. विकारियस मेंस्ट्रुएशन मतलब जो उसका ऑरिफिस है, मतलब जहाँ से ब्लड निकलना चाहिए मेंसेस में, वेजाइनल ऑरिफिस से, उसके अलावा भी नोज ब्लीडिंग या फिर आइज में थोड़ा थोड़ा ब्लड आना स्टार्ट करेगा. रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, कफ वुड बी ड्राई, स्पैस्मोटिक विद गैगिंग एंड वॉमिटिंग विद स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन, विद हेडेक एज इफ हेड वुड फ्लाई इनटू पीसेस. कफ भी पूरा ड्राई एंड स्पैस्मोटिक रहेगा क्योंकि एलिमेंटरी कैनाल और म्यूकस मेम्ब्रेन भी पूरा ड्राई है, तो कफ भी पूरा ड्राई और स्पैस्मोटिक रहेगा. एंड एक्सपेक्टोरेशन मतलब स्कैंटी, पूरा नील एक्सपेक्टोरेशन. कमिंग टू द मोडालिटीज, एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, एक्सर्शन, इंस्पिरेशन, कफिंग, स्लाइटेस्ट मोशन एंड वार्मथ. मतलब स्लाइटेस्ट मोशन से उसको एग्रावेट होगा. जस्ट फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन, वो ऐसे सांस लेगा भी तो उसको एग्रावेट करेगा. स्लाइटेस्ट मोशन, कफिंग, मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हो तो उसको पूरा सारा सिम्टम्स एग्रावेट कर जाएगा. एंड एमिलियोरेशन फ्रॉम एब्सोल्यूट रेस्ट, लाइंग ऑन द पेनफुल साइड, एंड कोल्ड एंड ईटिंग कोल्ड थिंग्स. वो अगर एक जगह बैठ जाएगा और मतलब लेटे रहेगा एक जगह तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा. Complementary to Rustox and Alumina, and antidote to Aconite napellus and Chamomilla. That's all from my side. Thank you.